I am joined by my very dear friend and colleague, मेरे someone साथ whose मेरे I बहुत respect प्रिय a मित्र lot और सहयोगी हैं, for his जिन्हें उनकी deep गहरी भू-राजनीतिक समझ political और दुनिया insight के and मामलों पर insight उनकी in पैनी नज़र के लिए world affairs पूरी दुनिया में as बहुत सम्मान मिलता they है। are वे progressing हर in दिन every day. बदलते घटनाक्रमों This को is not बखूबी a समझते usual हैं। day for us to आज का दिन be ऐसा नहीं है, recording जिस दिन हम this आमतौर पर ये प्रसारण रिकॉर्ड broadcast करते, जो that will बहुत be जल्द out जारी होने वाला very है। soon. लेकिन But फिर भी परवीन सोहानी ने Parveen मेरे साथ Sohani जुड़ने की has कृपा की kindly है, agreed to join क्योंकि me पश्चिम एशिया में because ऐसी there घटनाएं हो are रही हैं जो हम पर events असर taking डालती हैं, place हर किसी पर in असर West डालती हैं, Asia क्योंकि उनका तेल that से गहरा impact us, संबंध है, that impact उर्वरक से everybody गहरा संबंध है, हीलियम because से they are गहरा deeply संबंध है, connected हर उस to चीज से जिसकी हमें oil, हर दिन deeply जरूरत connected to होती है। fertilizer, deeply connected to इसलिए मैंने food, उनसे अनुरोध everything किया we है। need every single day. So I have requested him. He's very kindly agreed, and उन्होंने he बहुत and I कृपापूर्वक discussed सहमति दी what है we are और going to उन्होंने do, और मैंने इस पर and चर्चा it की कि हम was क्या करने his जा रहे हैं। suggestion that I उनका accepted, सुझाव and था, I जिसे मैंने स्वीकार किया will कि मैं आपको provide और to उन्हें एक you ही and समय to पर him ऐसी at the same जानकारी time दूंगा जो मेरे information that विचार I से feel बेहद गहरे स्रोतों is पर आधारित है, deeply बेहद sourced, विशेषाधिकार प्राप्त है deeply और ऐसी privileged, है जिसे and आपको something जानना that चाहिए। you ought to know हमारे as our वैश्विक global दर्शकों से audience. कहूंगा, If you like अगर what आपको we do, हमारा काम पसंद है kindly तो hit the कृपया इस like and समय लाइक subscribe और button at this सब्सक्राइब बटन time. दबाएं। Become a paid member. We पेड will मेंबर deliver बने। this high हम ये quality उच्च गुणवत्ता information वाली inside जानकारी your सीधे mailbox. आपके मेलबॉक्स में Go to पहुंचाएंगे। Substack, सबस्टैक transition ट्रांजिशन protocol, प्रोटोकॉल पर जाएं और and आपको ये you'll जानकारी receive मिल this जाएगी। information. खैर, Well, जो the जानकारी हमें information ऐसे दिन that यहाँ लाई है जिस brings दिन us हम here आमतौर पर on a नहीं day मिलते, that we वह वास्तव में usually काफी don't असाधारण meet है। is actually quite spectacular. And it comes on the context और of ये उस the अधिकतमवादी maximist अभियान, campaign बयानबाजी या of शोरगुल Western के or संदर्भ में आता है, vociferation जैसा कि of हमारे our दूसरे other colleague, सहयोगी that is पेपे I would like to एस्कोबार call इसे it, कहना from पसंद the करते हैं, tower, and I will call व्हाइट it हाउस में the बैठे उस LinkedIn बच्चे Tower की ओर in से। the White House. And और the मैं information कहूंगा, एक that दुष्ट we बच्चे provide to की you ओर as the से। public. और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं This वो ये appears है, to ये be किसी hard to जेम्स बॉन्ड comprehend फिल्म या from a उपन्यास movie का or a हिस्सा novel, but लगता it's है, actually लेकिन true. ये वास्तव में सच In है। the last couple of days, पिछले कुछ through दिनों में offensive ईरान के to साथ Tehran, संबंध सुधारने के लिए UAE यूएई के प्रमुख एमबीजेड and ने, जैसा कि दुनिया embassy, उन्हें as जानती the है, world knows him, शाही परिवार से जुड़े authorized the एक विमान में transfer 2 of टन यानी 2 2 tons, मीट्रिक टन 2 सोना metric तेहरान tons भेजने की of अनुमति gold दी। in इतना an ही नहीं, aircraft that उन्होंने was linked नकद to the royal 3 अरब family अमेरिकी in डॉलर Tehran. के हस्तांतरण Not को only भी that, मंजूरी दी। he approved the transfer of 3 billion United States dollars in cash, and this was delivered to Tehran. And the reason for that और ये is तेहरान तक that पहुंचाया गया। MBZ इसकी वजह wants यह है a कि एमबीजेड de-relationship ईरान with के साथ Iran. रिश्ते सुधारना चाहते MBZ हैं। does not want to be in a एमबीजेड ईरान के perpetual साथ conflict with हमेशा Iran. चलने वाले And संघर्ष our में नहीं understanding रहना as चाहते। analysts और who हमारी analyze समझ के abroad, मुताबिक, ऐसे we believe विश्लेषकों के that तौर पर MBZ जिनका made the कोई right निजी decision स्वार्थ because नहीं he है, had made हम all the मानते wrong हैं decisions कि until now एमबीजेड ने सही in their फैसला लिया conflict. है, Israel क्योंकि अब is तक linked up उन्होंने with the हर United फैसला States, गलत ही linked up लिया with था। India. None of उन्होंने them इजराइल के साथ emerged as गठजोड़ किया, victors in this उन्होंने contested अमेरिका के conflict. साथ गठजोड़ किया, That's one news. उन्होंने भारत के साथ गठजोड़ किया। Other news. इनमें से कोई भी इस हालिया संघर्ष में North विजेता Korea बनकर नहीं उभरा है। has, in the यह एक last खबर है। week, दूसरी खबर, transferred उत्तर via कोरिया China ने पिछले हफ्ते चीन very के रास्ते advanced ईरान को बहुत long-range उन्नत लंबी दूरी के missiles, हथियार और मिसाइलें भेजी हैं। long ये range, खेप चीन के रास्ते आई। to Iran. The shipment came via China. China added its own very, very चीन ने भी हथियारों significant का अपना बहुत portion बहुत of the अहम shipment हिस्सा that ईरान को got भेजा transferred है। to Iran. और And ये this हथियार is इलेक्ट्रॉनिक been वॉरफेयर से capable जुड़े with हैं, जिन्होंने असाधारण रूप electronic से warfare अच्छा that प्रदर्शन have किया performed है। extraordinarily well. बावर सिस्टम इतना The new सटीक हो system गया है that has कि become उसने so मिस्टर precise ट्रंप को that निशाना it बनाया, targeted Mr. जिससे Trump उन्हें एक while कार्ट में forcing him एयरफोर्स to 1 से बाहर निकलना exit पड़ा। Air Force ये One दृश्य पूरी दुनिया में in देखा गया a है। cart that has इतना been ही shipped नहीं, all over the world. पाकिस्तानी सैन्य तकनीशियनों को Not तेहरान only भेजा that, गया ताकि इस तकनीक Pakistani और इन हथियारों military को तुरंत technicians तैनात were करने में dispatched मदद to मिल सके। Tehran to assist पाकिस्तान को with तेहरान के साथ immediate इस क्षेत्र embedding में of this बहुत अच्छी technology, ट्रेनिंग this है। weaponry, एक और खबर, on which इनमें Pakistan से so हर was खबर great अपने आप में with बहुत them. महत्वपूर्ण होगी, Another लेकिन piece of news. एक और बेहद Each one of महत्वपूर्ण this will खबर be है very जो significant हमारी episode, वैश्विक but another ऑडियंस very हमसे significant सुनेगी piece of और news कहीं नहीं। that our global audience will hear from us nowhere else. As we reported on this channel, जैसा कि हमने इस चैनल पर बताया था, सुप्रीम लीडर ने कमान संभाल ली है। सुप्रीम लीडर ने अपने सहायकों की एक अलग टीम तैयार की है और उनमें सबसे अहम है मोहसिन रजाई, जनरल मोहसिन रजाई। अब ईरान
ईरान के सत्ता ढांचे में उनका नंबर 2 का स्थान है। And और मोहसिन रजाई ने एक ऐसा फैसला किया
जिसने इस टकराव को सुलझा दिया। यह आईआरजीसी नेतृत्व के भीतर चल रहा एक बड़ा टकराव था। आईआरजीसी नेतृत्व युद्ध जारी रखने के पक्ष में बहुत झुका हुआ था, क्योंकि उनका बहुत ही पक्का विश्वास है कि ट्रंप घिर चुके हैं। ट्रंप की पीठ दीवार से लगी हुई है। वे रक्षात्मक स्थिति में हैं। उनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है और वे चाहते हैं कि ट्रंप को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि कोई बातचीत हो। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेशकियन, संसद के स्पीकर गालिबाफ और अरागची, जिन्हें हर कोई विदेश मंत्री के रूप में जानता है, वे बातचीत को एक मौका देना चाहते थे। पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान मुख्य वार्ताकार और मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में उसकी बहुत अहम भूमिका रही है। तो बात निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। वे सुप्रीम लीडर के पास गए। सुप्रीम लीडर ने कहा, मोहसिन मेरा आदमी है, मोहसिन को फैसला करने दीजिए। तो मोहसिन ने बातचीत को थोड़ा सा मौका देने का फैसला किया। वह मिस्टर ट्रंप के साथ बातचीत खत्म नहीं करना चाहता था। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसलिए अब बातचीत आगे बढ़ने के लिए हमारे पास शायद एक हफ्ता है, शायद थोड़ा ज्यादा, शायद थोड़ा कम, और ये बातचीत इस्लामाबाद के रास्ते हो रही है। ईरान और पाकिस्तान असाधारण रूप से करीब आ गए हैं, बहुत 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 करीब। इतने करीब कि अगले 1-2 दिनों में मिस्टर गालिबाफ और अरागची का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जाने वाला है। वे 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें ईरानी नेतृत्व के सभी महत्वपूर्ण सदस्य होंगे और वे पाकिस्तान में हर उस व्यक्ति से बातचीत करेंगे जो मायने रखता है, नागरिक नेतृत्व से भी और सैन्य नेतृत्व से भी। हमें जानकारी मिली है कि महत्वपूर्ण फैसले होने जा रहे हैं। अहम फैसले किए जाएंगे कि अमेरिका के साथ क्या किया जाना है, पाकिस्तान, इस्लामाबाद और तुर्की के संदर्भ में ईरान की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो ये ऐसी बात है जिस पर बहुत बहुत सावधानी से नजर रखनी होगी और हम नजर रखेंगे। कहने का मतलब है, हमारी नजरें कमरे के अंदर तक होंगी। जैसे ही फैसले होंगे हम उन्हें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें तुरंत जानकारी मिल सके। तो ये जानकारी का वह अहम हिस्सा है जिसके बारे में हमें लगा कि इसे हमारे वैश्विक दर्शकों के लिए समझाने के लिए मेरी प्रिय मित्र और सहयोगी परवीन सोहानी जैसी असाधारण रूप से सक्षम और भरोसेमंद आवाज की जरूरत है। Thank you, Zulfikar, first of all, for having me on your show. जुल्फिकार, सबसे पहले मुझे अपने शो में बुलाने और मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए आपका धन्यवाद, और ये सारी खुफिया जानकारी साझा करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। अब अगर आप इजाज़त दें तो पहले बड़ी तस्वीर को देखते हैं, फिर हम आपके उठाए गए इन सभी मुद्दों पर विस्तार से आएंगे। तो बड़ी तस्वीर अब भी वही है। जहां तक ईरानियों का सवाल है, उनका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी बलों को पश्चिम एशिया से बाहर निकालना है, और इसी संदर्भ में ईरानी समानांतर रूप से इस संयुक्त रक्षा समझौते पर काम कर रहे थे, जिस पर 7 अगस्त को 3 बेहद महत्वपूर्ण देशों सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हस्ताक्षर हुए। तो उनका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं बदला है, और पश्चिम एशिया में शांति के लिए, साथ ही ईरानी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है, और ईरानियों ने इसे 17 जून को पहले ही स्वीकार कर लिया था, जब उन्होंने अपने एमओयू को इस्लामाबाद एमओयू कहा था। अब ये कहने के बाद आइए देखें कि ईरान के संदर्भ में क्या चल रहा है, सैन्य मोर्चे पर भी और राजनीतिक मोर्चे पर भी। तो अगर समग्र उद्देश्य वही है जिसका मैंने जिक्र किया, अमेरिकी सेनाओं को क्षेत्र से बाहर करना और एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा तैयार करना, तो निश्चित रूप से ईरानियों के लिए अब भी कूटनीति को सैन्य शक्ति पर प्राथमिकता हासिल है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन ईरानियों ने जो किया है वो एक बड़ा फेरबदल है, और दूसरी बात, सैन्य फेरबदल भी हुआ है।
उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो ये दोनों बातें बेहद अहम हैं। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, अब जनरल मोहसिन रजाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव बन गए हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण पद है। तो मेरे आकलन में ईरानियों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप दूसरी तरफ की घबराहट देख सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि दूसरी तरफ घबराहट है? क्योंकि हाल ही में न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद जाकर ऐलान किया कि बहुत जल्द मैं होर्मुज जलसंधि को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर दूंगा। Strait of Hormuz as the American territory. You see, it's all bluster. It has no legal देखिए, basis. ये सब सिर्फ धमकी भरी बयानबाजी है। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। जहां तक होर्मुज जलसंधि का सवाल है, बहुध्रुवीय दुनिया की दो बड़ी शक्तियों चीन और रूस ने ईरान का समर्थन किया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इससे वहां मौजूद घबराहट का स्तर दिखता है, और ये घबराहट जायज है। ये घबराहट क्यों जायज है? क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ है कि इस्राएलियों के साथ मिलकर युद्ध शुरू करने से पहले अमेरिकियों ने कभी अपना युद्ध सामान भंडार जांचा ही नहीं। युद्ध शुरू करने से पहले आप हमेशा दो बुनियादी चीजें करते हैं, चाहे वह सीमित युद्ध हो, ब्लिट्जक्रिग हो, थकाने वाला लंबा युद्ध हो, या आप किसी भी तरह के युद्ध की बात कर रहे हो। आप दो बुनियादी चीजें करते हैं। You do two basic things. One is the war appreciation that was not done. The पहला है second is you युद्ध का check आकलन, war inventory. वह नहीं किया गया। That doesn't mean फिर not दूसरा being है objective. आप अपने युद्ध भंडार की जांच करें कि क्या वह आपके उद्देश्य को पूरा करता है। The American लेकिन अमेरिकी नजरिए से देखें, इजरायली नजरिए से नहीं, तो उद्देश्य ही बहुत बेवकूफाना था। things were not लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। because of that are तो ये दो चीजें नहीं की गईं, और उनके नतीजे सबके सामने हैं। a very in इतना ही नहीं, मेरी राय में अमेरिकी सेना के लिए एक बहुत विनाशकारी बात यह है कि यूएस सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल कूपर सार्वजनिक रूप से मानो ये कह रहे हैं या संदेश दे रहे हैं कि देखिए, लड़ने की जरूरत है। or passing the messages that look there is a need to fight. Now this is the Israeli agenda. अब ये एक इजरायली एजेंडा है। मेरा मतलब है, उनका आकलन चाहे जो भी हो, उन्हें वह जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन को देना चाहिए, न कि इस तरह की लीक के जरिए ये कहना चाहिए कि देखिए हमें लड़ना होगा। और इससे ये दिखता है कि किसी भी हालत में सेंटकॉम कमांडर सीधे तौर पर इजरायलियों के साथ जुड़ा हुआ है। युद्ध के चल रहे होने के समय ऐसा होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये अमेरिकियों के लिए बहुत नतीजों वाला युद्ध है। अब जहां तक ईरानियों का सवाल है, ईरानियों ने आज दो चीजें हासिल की हैं। एक, मैं सैन्य दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, और इसी वजह से उन्होंने फेरबदल की घोषणा की। उन्होंने ये किया है और इसकी घोषणा भी की है। दो बड़ी बातें ये हैं कि उन्होंने मिसाइल प्रभुत्व हासिल कर लिया है, और मिसाइल प्रभुत्व के लिए किल चेन को छोटा कर दिया है। The kill chain for the missile dominance. Now, when I say missile dominance, I'm talking about अब जब मैं मिसाइल वर्चस्व की बात कहता हूं, तो मेरा मतलब ईरानियों की मिसाइलों से है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। यानी हम मैक 5, शायद मैक 10 की रफ्तार की बात कर रहे हैं। हम ऐसी मिसाइलों की बात कर रहे हैं जो अपना रास्ता बदलती हैं। हम ऐसी मिसाइलों की बात कर रहे हैं जो वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा दे देती हैं। बात यही है, और यहीं आपकी जानकारी भी जुड़ती है कि शायद उत्तर कोरिया, लेकिन मेरी समझ में उत्तर कोरिया से भी ज्यादा ईरानी खुद बहुत सी चीजें कर सकते हैं। ईरानी बेहद बुद्धिमान लोग हैं, उनके पास विशेषज्ञता है, और उनके पास समय भी रहा है, बहुत समय। इसलिए ये सारी चीजें वे खुद कर सकते हैं। लेकिन जो वे नहीं कर सकते थे, वहीं चीन की भूमिका आती है। वह चीनी बेदो प्रणाली है जिसका आपने जिक्र किया था। That is the Chinese Beidou system that you alluded to. Now, Beidou system has two aspects. One is अब बेदो सिस्टम के दो पहलू हैं। एक है जिसे बेदो 3 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, और दूसरा जो मिसाइलों की सटीकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वह है याओगान ऑगमेंटेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब यह 900 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करता है, और अब चीनियों के पास कुछ बहुत अनोखी चीज है। इन्हें आप जानते हैं, इस याओगान सैटेलाइट सिस्टम से मिलने वाले सिग्नल बहुत मजबूत हैं, और इन्हें निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। अमेरिकियों
या इजरायलियों का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस पर काम नहीं करेगा, और न ही साइबर हमले। तो दूसरे शब्दों में वे ईरानी मिसाइलों को लंबी दूरी पर सटीकता देने की स्थिति में हैं। तो ये दो बड़ी बातें हैं। अब IRGC कमांडरों की बात करें तो उन्होंने भी खुलकर कहा है कि अब हम रक्षात्मक से आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहे हैं। Now we are shifting from defensive to offensive strategy. What offensive means is should be very obvious to the American. आक्रामक कदम क्या हो सकते हैं, यह अमेरिकियों और अमेरिकी सेना को बहुत साफ तौर पर समझना चाहिए। उनकी नौसैनिक नाकाबंदी ही असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब आप नौसैनिक नाकाबंदी लगाते हैं तो वह युद्ध की कार्रवाई होती है। बस इतना है कि ईरानी जो कूटनीति को महत्व दे रहे हैं अब तक इसे युद्ध की कार्रवाई नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उनके पास क्षमता है, मिसाइलों में उनका दबदबा है। अगर वे नाकाबंदी कर रही अमेरिकी नौसेना के 1 या 2 बड़े जहाज उड़ा दें तो यह अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ी समस्या होगी और उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी, उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसलिए आज ईरानियों की बात करें तो उनकी पहुंच पूरे भूमध्य सागर तक है। Today, they cover the entire Mediterranean Sea. As far as the Indian Ocean is concerned, they actually cover. हिंद महासागर की बात करें तो उनकी पहुंच वास्तव में डिएगो गार्सिया तक है, जो ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उनकी मिसाइल और ड्रोन की पहुंच है। तो जब हम यह समझ लेते हैं कि सैन्य क्षेत्र में उनके पास कितनी क्षमता है, ऐसी क्षमता जो आज अमेरिकियों के पास नहीं है, तब इस्लामाबाद की भूमिका बिल्कुल साफ हो जाती है। आज इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान इकलौता देश है जो राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंचकर उन्हें ये सारी बातें समझा सकता है। शायद पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यह कर सकें। ऐसी बात जो ट्रंप के अपने चाटुकार सैन्य कमांडर राष्ट्रपति को बताने की हिम्मत नहीं करेंगे। पीट हेग्सेथ तो बिल्कुल नहीं। पीट हेग्सेथ तो अब्राहम लिंकन पर हुई बड़ी आपदा को छिपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। The big disaster that has happened on Abraham Lincoln. There have been suicide cases there. वहां आत्महत्या के मामले हुए हैं, वो इसे छिपा रहे हैं। वह अपनी तरफ से ऐसी व्याख्याएं दे रहे हैं जिनका बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब कोई विमानवाहक पोत इतने लंबे समय तक समुद्र में रहता है तो समस्याएं पैदा होती हैं, खाने पीने की कमी होती है और भी बहुत सी बातें होती हैं। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। जहाज पर 5000 लोग होते हैं, यह एक बड़ी समस्या है और इसके साथ एक कमजोरी भी जुड़ी होती है। इसलिए आप जानते हैं अब मूल रूप से इस पहल करने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर होगी और ईरानी इस बात से वाकिफ है। यही वजह है कि जैसा कि आपने सही कहा, ईरान का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल, करीब 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें खालीबाफ और अराकची भी शामिल हैं, जल्द ही अधिक गहन बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएगा। For more in-depth talks. The more in-depth talks are about the region. ज्यादा गहन बातचीत क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। बात उसी की है, बात कूटनीति की है। बात ट्रंप के दिमाग में यह समझ डालने की है कि देखिए ये सब नहीं चलेगा। आपकी शेखी, आप जानते हैं, अमेरिका के तटों से आगे नहीं जाती। किसी को इसकी परवाह नहीं है और निश्चित रूप से ईरानियों को तो नहीं। ईरानियों ने युद्ध जीत लिया है, ये बात सबके लिए साफ है। तो कुल मिलाकर स्थिति यहीं खड़ी है। अब जहां तक यूएई का सवाल है, यह अच्छी खबर है। यह अच्छी खबर है, मेरा मतलब है दरअसल मैं 2 अच्छी खबरें कह सकता हूं। एक यूएई से आ रही है और दूसरी सऊदी अरब से। यूएई से खबर यह है कि उन्हें शायद धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि ये सब आप जानते हैं, इजरायलियों के साथ, अमेरिकियों के साथ ये नज़दीकी अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर करना, और उन्होंने इजराइल में बहुत निवेश भी किया है। And they have done a lot of investments in Israel. There is no doubt about it. So they are realizing. इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अब उन्हें एहसास हो रहा है कि सबसे अहम बात यह है कि हमें शांति कायम करनी होगी। हमें शांति का हिस्सा बनना होगा, युद्ध का नहीं। उन्हें यह समझ आ रहा है क्योंकि उनके लिए दांव बहुत बड़े हैं। यह ऐसा देश है जो पूरी तरह समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों पर निर्भर है। यह ऐसा देश है जहां खाना बाहर से आता है। वह ग्रीन चैनल फूड कॉरिडोर आप जानते हैं जो उन्होंने बनाया है, वो जमीनी गलियारा ओमान के सलाला बंदरगाह से जाता है।
तो वह वहां से शुरू होता है और फिर यहाँ यूएई के फुजैरा बंदरगाह तक आता है। इसी तरह खाना यहाँ पहुंच रहा है। उन्हें इसका पता है और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुए निवेशों की भी जानकारी है। Investments which are there in artificial intelligence, they are aware of the fact of that demography. वे उस जनसांख्यिकी की हकीकत जानते हैं कि अमीराती मुश्किल से 10 लाख हैं, जबकि 1 करोड़ लोग बाहर से आए हुए हैं। अगर खाना नहीं आएगा, पानी नहीं होगा, तो वे सब चले जाएंगे। इसी तरह सूदी भी चीजों को बहुत साफ तौर पर समझ चुके हैं। देखिए, सऊदी अरब अमेरिका के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही ब्रिक्स का हिस्सा बनने और चीन के साथ रहने की भी। वे यही कर रहे थे। अगर आपको याद हो, नवंबर 2025 में प्रिंस सलमान ने व्हाइट हाउस की एक हाई प्रोफाइल यात्रा की थी। वहां उन्होंने घोषणा की थी कि सऊदी अमेरिका में अमेरिकी निवेश करेंगे। वे $600 अरब का निवेश करेंगे और वास्तव में उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, इसे $1 ट्रिलियन कर दीजिए। And in fact, at that time, President Trump has said, make it $1 trillion. The Saudi investment to be done there and वहां सऊदी निवेश किया जाना है। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, वह पैसे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्हें समझ है कि वहां क्या दांव पर लगा है। और यही वजह है कि एक और खबर आई कि हाल ही में सऊदियों ने भी खुद प्रिंस सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। इसका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप को बताना था कि आपके सारे निवेश चले जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। दरअसल एक समय तो ऐसी बात भी हुई थी कि जब वह व्हाइट हाउस में थे तो वह F-35 खरीदने की बात कर रहे थे, जो जाहिर है कि संभव नहीं होगा। लेकिन अमेरिकियों के लिए निवेश एक बहुत बड़ी चीज है। as far as the Americans are concerned, so he is in a position to tell तो वो राष्ट्रपति ट्रंप से कहने की स्थिति में है कि होर्मुज जलडमरूमद अब अमेरिकी क्षेत्र है। इस बारे में अपनी ये सारी डींगें हाँकना बंद कीजिए। इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जब आप इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर स्थिति निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की ओर बढ़ रही है, और इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसका एक प्रमुख आधार वह संयुक्त रक्षा समझौता है, जिस पर 7 अगस्त को हस्ताक्षर हुए थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस संकट की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसके दौरान ही नहीं, बल्कि संकट के बाद भी पाकिस्तानियों की बड़ी भूमिका होगी। और ईरानी समझदार लोग हैं, वे इन सब बातों से वाकिफ हैं। तो जुल्फिकार, मैं तस्वीर को इसी तरह देखता हूँ। this is the way I see the picture, Zulfikar. Fantastic summary. शानदार सारांश, शानदार विश्लेषण, दुनिया भर के वैश्विक दर्शकों के लिए शानदार, गहराई से की गई समीक्षा, जिसका 14 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रवीण, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ये करने के लिए यहाँ हैं। मैं बताना भूल गया था कि एक दूसरी फोन कॉल भी हुई थी। प्रवीण, मुझे नहीं पता कि हमने इसे साफ किया था या नहीं। हमने शायद 1 हफ्ता पहले इस चैनल पर बताया था कि जब ये बहुत 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 बड़ा विशाल हमला होने वाला था, तब प्रिंस सलमान ने फोन किया और कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने उनकी बात मानी, वे पीछे हट गए। तो बस कल ही एक कॉल हुई प्रवीण, बस कल ही दूसरी कॉल। और इस दूसरी कॉल में हमारी जानकारी के मुताबिक, जिसे हम पूरी तरह भरोसेमंद मानते हैं और जिसके बहुत गहरे स्रोत हैं, प्रिंस सलमान ने कहा, पहली बात, आप किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भी आप ईरान पर हमला करने के लिए हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस सऊदी अरब से बहुत बहुत बड़ी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब तक सऊदी अरब बस एक पिट्ठू था। मेरा मतलब है, अमेरिका जो भी चाहता था, सऊदी अरब वही करता था। मेरा मतलब है, एक बार तो बहुत पहले भी उन्होंने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। तो ये शानदार खबर है। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि इसका नतीजा यह होगा कि व्हाइट हाउस में बैठा वह घातक बच्चा, मैं उसे घातक बच्चा ही कहूंगा, वापस अपने सैंडबॉक्स में चला जाए और वहीं रहे। वह ऐसा करता है या नहीं, आप जानते हैं। आप और मैं सिक्का उछालकर शायद उसी तरफ फैसला कर लें।
No, no, I agree, Zulfikar, entirely with you आप that जानते हैं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि प्रिंस सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से ये तीनों बातें कही होंगी। आपको सूदी ठिकानों, सूदी बुनियादी ढांचे और सूदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ ही देखिए, जहां तक ट्रंप का सवाल है, जब वह इस मूड में आ जाते हैं और कहने लगते हैं अब यह मेरा इलाका है, होर्मुज जलडमरुमद, तो उन पर दूसरे दबाव भी होते हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख की तरफ से उन्हें कोई आकलन मिल रहा होगा कि देखिए, ईरानियों ने भी होर्मुज से जुड़ी अपनी कुछ क्षमताएं अभी तक नहीं दिखाई हैं और उन क्षमताओं में मिजेट पनडुब्बियां शामिल हैं। And those capabilities are the midget submarines. Now, these are the submarines that the Iranians got अब from ये वे South पनडुब्बियां Korea. हैं Have no जो doubt ईरानियों that को North Koreans उत्तर कोरिया से मिली, have given them the technology और मुझे इसमें कोई शक नहीं है ideal कि उत्तर कोरियाई लोगों ने उन्हें तकनीक भी दी होगी। ये फारस की खाड़ी के उथले पानी में काम करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और ये मिसाइलों के साथ साथ टॉर्पीडो भी चला सकती हैं। फिर ईरानियों के पास पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन भी हैं जो बिल्कुल खामोश हैं और जिन्हें सोनार से पकड़ा नहीं जा सकता। और ये भी याद रखिए, जहां तक ट्रंप का सवाल है, उनका पूरा गोल्डन डोम प्रोजेक्ट जिसे वे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, आप जानते हैं, उसके लिए उन्होंने $1.5 ट्रिलियन मांगे थे। तो उसमें अमेरिका की स्पेस फोर्स की मुख्य भूमिका थी, है ना? was of the Space Force of America. And recently there is news that the Space Force commander और हाल ही में खबर आई है कि यहाँ स्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा, मुझे किसी फंडिंग के आने की उम्मीद नहीं है। फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि वह पैसा यहाँ इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। a war that America एक ऐसा युद्ध जिसे अमेरिका जीत नहीं सकता। बात इतनी ही सीधी है। put together तो जब आप इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं, लेकिन मेरे लिए, मैं आपको बताऊं, सैन्य दृष्टिकोण से सबसे निराशाजनक बात यह है कि यूएस सेंट्रल कमांड से जो संदेश आ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमें ऑपरेशंस जारी रखने चाहिए, क्योंकि इसे कमांड ब्रेकडाउन कहा जाता है। इसका मतलब है कि कमांड का बिल्कुल भी तालमेल नहीं है चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो पूरे सैन्य बल के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार है। chief of the staff's committee, the man who is responsible overall for the military. So these are very serious things. You see, when you put all those तो ये बहुत गंभीर बातें हैं। आप देखिए, जब आप उन सारी छोटी छोटी बातों को एक साथ जोड़ते हैं, तो समझ आता है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। सिर्फ अमेरिकी साम्राज्य ही नहीं, उसकी दीर्घायु भी दांव पर है। नियोकॉन्स का जो सपना 90 के दशक में शुरू हुआ था और वे दुनिया भर में तबाही मचाते रहे हैं, मानवीय काम के नाम पर, मदद की जरूरत है कहकर, या उदार लोकतंत्र के नाम पर, वह भी खत्म होगा। वियतनाम युद्ध के बाद जो कुछ शुरू हुआ था, जिसमें ये नियोकॉन्स लगातार ताकतवर होते गए, वह भी अमेरिकी साम्राज्य के पतन के साथ खत्म होगा। तो हम एक बहुत बड़ी चीज को देख रहे हैं, और यूक्रेन युद्ध में अमेरिकियों की हार भी, वहां यह अमेरिका का भी युद्ध है, प्रॉक्सी के जरिए। नाटो क्या है? नाटो अमेरिका है, अमेरिकी सेना है। एक बड़ी समस्या है, यह आदमी जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की, खुले तौर पर कह रहे हैं, मुझे उन मिसाइलों का सिर्फ 10वां हिस्सा मिल रहा है जो मुझे मिलनी थी, पैट्रियट्स। missiles that were supposed to come to me, the Patriots. So he's also in big trouble. Don't know how long he can. तो वह भी बड़ी मुसीबत में है। पता नहीं वह वहां युद्ध को कितने समय तक जारी रख सकता है, और वही नाटो का अंत होगा। तो जुल्फिकार, बात यह है कि यहाँ इस युद्ध का रुख कैसा रहता है। इसमें पाकिस्तान एक अहम खिलाड़ी है, इसमें जरा भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य नेता ही वह प्रमुख व्यक्ति हैं जो सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर सकते हैं और उन्हें एक स्वतंत्र राय दे सकते हैं। ट्रंप को वह स्वतंत्र राय पीट हेगसेथ से नहीं मिलेगी, जो युद्ध कला को बस समझते ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और निश्चित रूप से यह जनरल कैन से भी नहीं आएगी। जनरल कैन बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन वह कमांड की Sundar-Taps-Poring, Mehmet Haksekit की सिखा फौज युद्ध सचिव हैं। Tujowick, Anis Mastroch, Amikis Desiskasthatha. So there is a big problem, Zulfikar. That is why the Well, Americans are. let me share with you something more troubling in that light. परवीन, इसी संदर्भ में मैं आपके साथ एक और ज्यादा चिंताजनक बात साझा करना चाहता हूँ।
और जाहिर है आपका विश्लेषण हमेशा की तरह बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान और ईरान के बीच क्या चल रहा है, नेतृत्व स्तर की बातचीत और इन सब के बारे में कुछ जानकारी है। गालिबाफ और जनरल रजाई ने असीम मुनीर से कहा कि वे इस समय ट्रंप से बात करें। मैं दोहराता हूं, बात न करें। मेरा मतलब है मोहसिन रजाई। नागरिक नेतृत्व और आईआरजीसी के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें असीम मुनीर भी शामिल थे। तो अनुरोधों में से एक यह था कि कृपया ट्रंप से बात करें। पहले देखते हैं कि हम कूटनीतिक स्तर पर क्या हासिल कर सकते हैं, यानी दूसरे लोगों से बात करके, जैसे ट्रंप, जेडी वेंस और उनके दफ्तर से, वगैरह वगैरह, क्योंकि वे सभी ट्रंप को पूरी तरह अविश्वसनीय मानते हैं। वो एक बात कहते हैं और 5 मिनट बाद आप जानते हैं उसे भूल चुके होते हैं। इसलिए वे पहले उन लोगों के बीच बुनियादी नियम तय करना चाहते थे जो किसी भी हुए समझौते को लागू करने वाले होते। तो हाँ, आप स्ट्रेंग अदीम मुनीर फोन उठो और ट्रंप को कॉल कर सकते हैं। हम मैं डेप्ट और उली नॉसबी। लेकिन अभी बातचीत उस स्तर पर नहीं है। जैसा मुझे बताया गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, ईरान की तरफ से अराक्ची और मार्को रूबियो जैसे मंत्री इसमें शामिल हों, उस स्तर पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत सिर्फ जेरेड कुशनर जैसे मस्खरों के साथ नहीं हो रही है, शुक्र है, और विटकॉफ के साथ भी नहीं, बल्कि जमीनी हकीकतों को सुलझाने के लिए राजनीतिक चैनलों के जरिए हो रही है। और उम्मीद है कि ये बातचीत ऊपर तक जाएगी और वे ट्रंप को समझाएंगे कि तुम ये युद्ध हार चुके हो यार। इससे पहले कि तुम्हें यहां से खदेड़ दिया जाए, यहां से दफा हो जाओ। अब इस हकीकत को देखते हुए मैं तुम्हें जमीन से मिली बेहद पुख्ता जानकारी दे रहा हूं। प्रवीण, आप असाधारण रूप से सक्षम विश्लेषक हैं। आपको क्या लगता है इसका अंत कहां होगा? देखिए, जहां तक इस युद्ध का सवाल है, इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व आए और ईरानियों से ईरानी शर्तों पर बात करें। और ईरानी शर्तें एमओयू में साफ तौर पर लिखी गई हैं। और अब वे कुछ मुद्दों पर बहुत आक्रामक हो गए हैं। वे मुद्दे हैं: नौसैनिक नाकेबंदी हटाए, हम पर लगे सारे प्रतिबंध हटाए, हमें अपना तेल, अपनी गैस और अपने पेट्रोडॉलर निर्यात करने दीजिए, और अपनी सेनाएं इस क्षेत्र से बाहर निकालिए। शायद आप ये चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस संयुक्त रक्षा समझौते को भी आखिरकार लागू करने के लिए यहाँ और बातचीत की जरूरत होगी। आप जानते हैं, कुछ बारीकियां हैं जिन पर हम शायद किसी और समय बात कर सकते हैं। बहुत सी बातों को अभी विस्तार से तय करना बाकी है। इसलिए वे शायद अमेरिकियों को ये विकल्प देंगे कि आप चरणबद्ध तरीके से यहाँ से निकलें और फिर इजरायलियों को नियंत्रण में लाया जाए, जो ट्रंप नहीं कर सकते। तो यह ऐसी चीज है जिसे किसी न किसी चरण पर ईरानियों और संयुक्त रक्षा समझौते को संभालना होगा। मैंने जिस सामूहिक प्रतिरोध की बात की थी उसका ये एक पहलू है, और फिर वे युद्ध मुआवजे की बात लेंगे। यहाँ वे शायद समझौता कर सकते हैं, लेकिन जमी हुई संपत्तियों का क्या? और यहाँ जो बात आपने पहले कही थी कि यूएई ने कुछ काम किया है, करीब 2 मीट्रिक टन सोना भेजा गया है और 3 अरब नकद। तो आप देखिए, अगर सभी जीसीसी देश एक साथ आते हैं तो होता यह है कि एक तरफ क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा एक तय समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ ब्रिक्स भी मजबूत होता है, क्योंकि याद रखिए सऊदी अरब और यूएई दोनों ही ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हैं, तो वह भी मजबूत होता है। इसका मतलब यह है कि जिस नए विश्व व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें ब्रिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और उसका मजबूत होना इस नई विश्व व्यवस्था में इस्लामाबाद, पाकिस्तान को भी बहुत अच्छी स्थिति में ले आता है। तो ये सारी बातें हैं जुल्फिकार, जब आप इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है कि अमेरिकियों के पास आने और बातचीत शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
I have one additional clarification that I should have मुझे एक maybe अतिरिक्त made earlier, स्पष्टीकरण देना है perhaps जो I शायद did मुझे in पहले कर our देना last चाहिए था। conversation. शायद मैंने हमारी Iran is पिछली unwilling to बातचीत में किया भी था। compromise ईरानी material समझौते के लिए to तैयार है। relax a bit मेरा मतलब है on समझौता two of नहीं, their 6 अपने points. 6 बिंदुओं में से 2 And one पर you थोड़ा already नरम रुख just अपनाने को alluded तैयार to, हैं। which was पहला, that जिसका आपने अभी जिक्र well, किया, okay, ये we था will कि talk ठीक about है, हम reparations मुआवजे पर बात and we'll करेंगे, talk about this. इस पर बात But we करेंगे, can at लेकिन least कम से कम आप have बाकी चीजों को लागू you करना look शुरू into कर it for सकते हैं। arrest और यहाँ वास्ट and no we map can judgment go को open up the खुर्ता store शुरू कर tomorrow, सकते blah हैं, blah blah. वगैरह। Reminiscently, Iranians have ये also निवेशियर expressed है my उसके आधार पर ये understanding पर and it's समझ my रहा है, opinion ठीक based on what सूरत। I've heard that they have said, all right, sir, we as far as Israel is concerned, we know that you are जहां not तक the इज़राइल boss, का सवाल they है, are the हम boss. जानते हैं कि आप So बॉस नहीं हैं, we will बॉस तो not वे हैं। इसलिए हम demand आपसे ये that मांग you नहीं tell करेंगे कि आप किसी somebody ऐसे who's व्यक्ति actually से bossing जो over वास्तव में you आप पर हुक्म to चला रहा है, behave in a अलग different तरह से way. व्यवहार करने We को want कहें। you to हम बस simply चाहते हैं कि आप assist इज़राइल की मदद करें। आपके Israel यहाँ से चले जाने के बाद after हम you इससे leave निपट here. लेंगे। मेरा We will मतलब है, deal with it. बड़ी बात है, I mean, big बहुत बड़ी thing. बात। Very big परवीन, thing, आप इसे कैसे देखती हैं? Parveen. मेरा What do मतलब you है, make of मैं that? I इसे mean, ऐसे I देखता हूँ see कि that ईरान as अपने हाल में हासिल किए गए कुछ लंबी Iran दूरी के मिसाइल launching तेल some of अवीव पर its दागे, recently उनका acquired विनाशकारी असर long-range हो। missiles into Tel Aviv to devastating effect. See, as far as Netanyahu is concerned, his own future is at देखिए, जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उनका अपना भविष्य भी व्यक्तिगत रूप से दांव पर लगा हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू युद्ध रोकेंगे। और जहां तक इजरायलियों का सवाल है, हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं और बहुत से विश्लेषक भी इस बारे में बोल चुके हैं। अमेरिकी कांग्रेस पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। यही वजह है कि ब्रैड कूपर, जनरल एडमिरल ब्रैड कूपर भी आईडीएफ की भाषा, इजरायली भाषा बोल रहे हैं। तो इन जायोनिस्टों से अलग से निपटना होगा या उनका अलग से ध्यान रखना होगा। ये तब होगा जब ईरान अमेरिका के मुद्दे सुलझ जाएंगे, क्योंकि इजरायल में समय लगेगा। मेरे आकलन में ये जल्द खत्म नहीं होगा, लेकिन वो एक साइड शो होगा। मुख्य चिंता दुनिया के लिए होर्मुज जलडमर मध्य को खोलना है। अमेरिका की यही मुख्य चिंता है, और उनकी यानी ईरानियों की मुख्य चिंता यह है कि ये लोग फारक पश्चिम एशिया से बाहर निकल जाएं। Iranians is that these guys go out of West Asia. That is the assessment of Mohsen Rezai. मोहसिन रजाई का आकलन यही है, जो पिछले 1-2 दिनों में असीम मुनीर तक पहुंचाया गया है। इजरायल की चिंता मत कीजिए। हमारी मांग यह है कि आप उनकी मदद न करें। हम चाहते हैं कि आप इस पर सहमत हों और हम उनसे निपट लेंगे। मैं आपको बिल्कुल वही शब्द बता रहा हूँ। बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त स्रोत से हम उनसे निपट लेंगे। वे इतने भरोसे में हैं। तो हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की है और मैं आपका सचमुच बहुत आभारी हूँ। बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ ऐसे समय में आने का मेरा अनुरोध स्वीकार किया जब आपको आराम करना चाहिए था। आज शनिवार है और शायद भारत में स्वतंत्रता दिवस है। आज पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस था। जाहिर है मैं यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में हूँ, इसलिए शनिवार को और आपके स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के दौरान आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है। मैंने वियतनाम युद्ध का दौर देखा है। मैं तब एक युवा छात्र था और आप जानते हैं युद्ध के बहुत खिलाफ था वगैरह। मेरा मतलब है मैंने वह सब देखा और अब मैं ये देख रहा हूँ और मुझे ये दुनिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। इसलिए मुझे आपको आमंत्रित करना पड़ा और आपसे अनुरोध करना पड़ा कि आप हमारे दर्शकों के लिए इसका विश्लेषण करें। इसे दुनिया भर के लोग देखेंगे, हजारों हजार लोग और सभी भाषाओं में। तो परवीन, यहाँ आने और अपना ये शानदार विश्लेषण करने के लिए समय निकालने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समापन से पहले मैं आपको आखिरी बात कहने का मौका दूंगा। मैं दुनिया भर में हमारे दर्शकों से बस इतना अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और पेड मेंबर बनें। सबस्टैक पर जाइए, उसी नाम से ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। बहुत मामूली शुल्क है, महीने के $5। हम हफ्ते में 2 बार ऐसी ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे। तो अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कृपया ऐसा करें। तो परवीन, आगे बढ़िए, कृपया आखिरी बात कहिए। So go ahead, Praveen, say the last word, please. Yeah, so
the concluding line हाँ, has to तो be निष्कर्ष की पंक्ति यह होनी चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अमेरिकी क्षेत्र है, इस बात को अपना बताना घबराहट की हद दिखाता है। extent of panic. घबराहट इसलिए पैदा हुई है क्योंकि वहां कोई रणनीतिक सोच बिल्कुल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, सब कुछ सिर्फ रणनीति नहीं, चालों पर था, और वे चालें उलटी पड़ गई हैं, और सारे पत्ते ईरान के हाथ में हैं। ईरान भी केवल पाकिस्तान को साथ लेकर ही काम कर सकता है। पाकिस्तान बेहद महत्वपूर्ण हो गया है और दुनिया ये सब देख रही है। और आखिरी बात, जुल्फिकार, तुम्हारे लिए कभी भी समय है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम संदेश भेजोगे तो मैं तुम्हारे शो पर आ जाऊंगा। Not a big deal. If you send a message, I'll come on your show. You're so kind. You're so kind. आप बहुत बहुत I will मेहरबान just, हैं। make आपने जो a- अभी कहा उस पर मैं बस एक और बात जोड़ना चाहूंगा। बेशक मैं भी उसके समर्थन में रहा हूं। आप जानते हैं, पेपे एस्कोबार, जो हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, पूरी दुनिया में यात्रा कर चुके हैं और उनका बहुत सम्मान भी है। वे बिल्कुल उसी बात की चर्चा कर रहे थे जिसकी आप बात कर रहे हैं। कोई रणनीतिक योजना नहीं है। किसी ने उनसे या हमसे पूछा था कि प्लान बी क्या है। उन्होंने कहा प्लान ए ही नहीं है, प्लान बी को भूल जाइए, प्लान ए कभी था ही नहीं। तो हम ऐसी स्थिति से निपट रहे हैं जहां कब कोई प्लान ए था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। Never been a plan A. Yeah, that's correct. बिल्कुल सही। इस फैप्स में हुए। I'm just shocked. I'm absolutely shocked at how. मैं बस स्तब्ध हूँ। मैं पूरी तरह स्तब्ध हूँ कि ये कैसे हुआ है। मैंने शायद इस शो में या किसी और शो में जो हमने किया था कहा था कि मेरी पृष्ठभूमि वगैरह की वजह से मुझे संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बुलाया गया था, और मैंने 5 साल बेस पर बिताए, राइट पैटरसन एयर फोर्स बेस में। मैं F-15 कार्यक्रम यानी F-15 के प्रमुख डेवलपर्स में से एक था। उस समय यह अब तक का सबसे उन्नत कार्यक्रम था और हमने कितनी व्यापक योजना बनाई थी, और यहां हमें कुछ भी नहीं दिखता। यह साम्राज्य का पतन है। धन्यवाद प्रवीण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका दिल से आभारी बना रहूंगा। धन्यवाद सर। And I remain deeply grateful to you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Duets, remember mine. It's stagnant. बाय बाय।